or Dolly. Start the program, Dolly. Sure, ma'am. Lok samastah sukhino bhavantu. Meaning, may all beings everywhere be happy and free. And may the thoughts, words, and action of my own life contribute in some way to that happiness and to that freedom for all. A very good morning to our esteemed guest, Miss Gurvinder Kaur, Reverend Father James Peter Raj, our manager, Reverend Sister Joyce, our principal, Reverend Sister Alice, our headmistress, worthy teachers, loving Loving parents, parents and my and dear my dear friends. friends. Today is a great day for all of us as we celebrate the International Day of Yoga 2021 in our school. As a concerned citizen of this nation, it is our responsibility to take care of ourselves and Mother Earth. To remain fit, we have to lead a healthy lifestyle. Yoga is a perfect way to keep our body and mind healthy and fit. That's why we have gathered in this online session to learn few healthy habits to keep our body, mind, and soul calm and peaceful. Today, I take this opportunity to welcome you all to this special assembly of the International Day of Yoga. I, Dolly Kisku, would like to draw your attention to the word yoga and its importance in one's life. Yoga, derived from the Sanskrit word yuj, means to unite. As per yogic scriptures, yoga leads to the union of individual consciousness with universal consciousness. Yoga initially originated from India around 6,000 years ago and was used as a medium of meditating or as dedication to gods of Hindu religion. The life of yoga can be traced back to its origin by its references in holy Hindu books like Rig Veda and many more. Other religions such as Buddhism and Jainism focus on an aspect of yoga, dhyan, believing Believing it to it to unite unite soul soul of of being to enlightenment. life. The world became aware of yoga in the time The period time of period of 500 to 500 to 200  200 BCE BCE by Lord by Lord Buddha, Buddha, who learnt who it learned from it many from Indian yoga gurus. The idea of International Day of Yoga was proposed by Indian Prime Minister Shri Narendra Modi on 27 September 2014 during his speech at the United Nations General Assembly, who held an informal consultation on the draft resolution entitled International Day of Yoga on 14th October 2014. This draft received support from 177 member states who sponsored the text, which was adopted without a vote proclaiming June 21 as International Day of Yoga. The first International Day of Yoga was observed on 21 June 2015. Around 36,000 people, including Shri Narendra Modi, and dignitaries from 84 nations, performed 21 asanas for 35 minutes in New Delhi at Rajpath. The theme of International Day of Yoga 2021 is Yoga at Home and Yoga with Family. This theme focuses upon telling people to stay motivated at home and adopt a healthy lifestyle by doing exercise and yoga. People use yoga to test their fitness level, to attain mental stability, which enhances their work productivity, self-confidence, and holistic personality. The most extreme level of yoga is called contortion. Yoga is the way of life for every person. It does not give you fatigue. Instead, helps you to have a good start
to your day or relaxative environment for night. Practicing yoga does not give you a soul day, but only helps you to unblock your mind and work to your full potential. Peace can be achieved by yoga. Yoga gives a feeling of being able to be satisfied with yourself, accepting yourself, and a helpful partner to fight off worries of past and future, enjoying the present. Thank you. Today, we are privileged to have Ms. Gurvinder Kaur as our esteemed guest. Now, I humbly request our manager, Reverend Father James Peter Raj, to officially welcome the guest of the day. Good morning, everyone. Good morning, Father. Good morning, Father. Morning, Father. Yoga is the art, work of awareness, and the canvas of body, mind, and soul. It is a journey of the self to the self through the self. The nature of yoga is to spread the light of awareness into the darkest corners of a body. True yoga is not about the shape of a body, but the shape of a life. Yoga is not to be performed, but to be lived. It does not care about what you have been, but it cares about the person you are becoming. It does not rely on age, color, or cultural background, but simply relies on the interests of an individual person. Yoga has lately become very popular, not only as a way of improving your health and fitness of your body, but also as a means of personal and spiritual development each oneself. On behalf of the management, I'd like to wish you all a very happy International Yoga Day. And also would like to welcome our guest of the day, Mr. Gurvinder, a very talented and certified yoga instructor. She is certified yoga volunteer by the Yoga Certification Board under the Voluntary Certification of Yoga Professionals, Ministry of Ayush, Government of India. I wholeheartedly welcome you in our midst. I also welcome all the teachers, parents, and my beloved children for this International Yoga Day. Yoga is that light which, if we can lit once, will never get dimmed. The more we practice, the brighter the flame will be. It helps us to discipline our body and mind and soul. I hope you all will actively participate in this session and to benefit from it. All the best, my dear children. Have a fruitful yoga day, have a fruitful session, and healthy life ahead. So once again, wish you all the best. Thank you, Father. To be healthy in body, mind, and soul, we need to have control over oneself. Yoga enables one to be free from worries and distress, and form oneself to be a civilized person with fine qualities of heart and mind. Yoga keeps us away from sickness. Now, I humbly request our esteemed guest of the day, Ms. Gurvinder Kaur, to introduce the gathering to the goodness and wellness of yoga.
Gurvinder ma'am, kindly unmute yourself. Are you able to listen to me? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Actually, I've logged in from two devices. It's mute, ma'am. Good morning. Am I audible now? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Thank you to all and a very good morning and welcome to all in this International Day of Yoga. Thank you, Dolly, for a very warm welcome. I'm very honored to be with you all today. Before I start my session, I would like to thank the manager of Sahodaya School, Reverend Father James Peter Raj, for giving me this opportunity and platform on this special day. Thank you, Father. I would also like to thank Deepika ma'am for getting in touch with me and helping me along with all the physical education teachers. I thank to each and every participant for attending my session. I hope you will like and enjoy and benefit from it. Thank you to all. So we now get started with our yoga session. इस सेशन में हम कुछ बहुत ही सरल से अभ्यास करने जा रहे हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के प्रोटोकॉल के अनुसार हम करेंगे। उम्मीद है कि आप सब इसको अच्छे से कर पाएंगे, लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि सब लोग अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार ही अभ्यासों को करें, निर्देशों का पालन करें। जो भी इंस्ट्रक्शंस आपको दिए जाएंगे आपको उसी के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करना है एंड यू आर ऑल रिक्वेस्टेड टू डू ऑल दी आसन्स और जो भी क्रियाएं हम कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू योर body comfort level. Don't force yourself into anything or pressurize and bring a smile on your face and enjoy the session. तो सबसे पहले हम एक कंफर्टेबल पोस्चर में बैठ जाएंगे. बी इट पद्मासन, अर्ध पद्मासन और सुखासन. जो भी आसन में आप लोग कंफर्टेबल हैं आप बैठ जाइए. जो लोग पद्मासन लगा सकते हैं वो लगा लेंगे, बाकी अपनी क्षमता के अनुसार जो भी आपका आसन कंफर्टेबल है. बस इस बात का ध्यान रखना है कि अपने शरीर को स्थिर रखना है, बहुत ज़्यादा बॉडी मूवमेंट ना हो. तो उसी तरह से वो आसन आप ग्रहण कर लें जिसमें आप कंप्लीटली स्टेबल होकर बैठ सकते हैं. दोनों हाथों की ज्ञान मुद्रा बना लेंगे और अपने घुटनों पर रख लेंगे. आँखों को कोमलता से बंद कर लेंगे. समूचे शरीर को सर से पांव तक जांच जाएंगे. अपने श्वासों के प्रति, अपने शरीर के प्रति सजग रहेंगे. लंबा गहरा श्वास और प्रश्वास आने देंगे और जाने देंगे. मन को और शरीर को स्थिर होने देंगे. मन में आते हुए विचार और जाते हुए विचारों को पूरी तरह से जाने देंगे. उनके साथ लड़ना नहीं है. जो भी विचार आपके मन में आ रहे हैं उन्हें आने दें और सरलता से जाने दें. इसी क्रिया को दोहराते हुए अपने मस्तिष्क को पूरी तरह से विचार शून्य, completely neutralize your mind, stabilize your body.
शरीर में किसी भी प्रकार का कोई हलचल ना हो, इसका ध्यान करें। अपने ध्यान को केंद्रित करें अपने श्वासों पर। आता हुआ और जाता हुआ महसूस करें। धीरे से श्वासों को आने दें, जाने दें, बिना किसी हलचल के। आपका शरीर शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है पूरी तरह से। अब आप नियंत्रित हो चुके हैं। आपका मस्तिष्क, आपका शरीर आपके नियंत्रण में। किसी भी तरह का कोई तनाव मस्तिष्क में, शरीर में नहीं। पूरी तरह से निर्मल और सहज। इसी भावना के साथ लंबा गहरा श्वास लेंगे। तत्पश्चात 3 बार ओम उच्चारण के बाद प्रार्थना के लिए तैयार। तो ओम उच्चारण हेतु लंबा गहरा श्वास करें। टेक अ डीप इनहेल। प्रार्थना के लिए तैयार होंगे। दोनों हाथों को परस्पर मिला लेंगे नमस्कार मुद्रा में। और मैं जो प्रार्थना करूंगी उसको मेरे साथ साथ दोहराएंगे। सभी की एकता के लिए हम प्रार्थना करेंगे। लंबा गहरा श्वास। संगच्छध्वं संवधध्वं संगच्छध्वं संवधध्वं संभो मनांसि जानताम् संभो मनांसि जानताम् देवाभागं यथा पूर्वे देवाभागं यथा पूर्वे संजनाना उपासते संजनाना उपासते। ओम शांति शांति शांति। अपने माता पिता, इष्ट और गुरुजनों को अपना मन ही मन नमन करेंगे। उनके प्रति आदर का भाव, सम्मान का भाव, नतमस्तक होकर उनको नमस्कार। कोमलता से अपने हाथों को परस्पर घर्षण करेंगे। रब योर पाम्स एंड जनरेट सही। जब आपकी हथेलियां अच्छी तरह से गर्म हो जाएं, तो अपनी हथेलियों को कोमलता से अपनी आँखों पर रखेंगे, बिना किसी प्रेशर के अपनी आँखों पर। धीरे धीरे एक मुस्कुराहट के साथ अपने चेहरे पर अपनी आँखों को कोमलता से खोलेंगे। तो वेलकम वंस अगेन। अब हम अपने अभ्यास शुरू करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम कुछ सूक्ष्म क्रियाएं करेंगे, जो एक तरह से बॉडी की वार्मिंग अप होती है। हमारे बॉडी के सभी अंगों को
खोलने में, उनको फ्लेक्सिबल बनाने में सहायक होते हैं। तो सभी अपने अपने मैट पर खड़े हो जाएंगे। स्टैंड अप ऑन योर मैट्स। समस्थिति बना लेंगे। पैरों में 2 से 3 इंच का गैप। अपने हाथों को सीधा करते हुए उंगलियां जमीन की ओर और अपनी जंघाओं के पास रखेंगे, नियर योर थाइस। गर्दन सीधी और आपका स्पाइन स्ट्रेट। ये है हमारी समस्थिति। तो सूक्ष्म क्रियाओं में सबसे पहला अभ्यास हम करने जा रहे हैं अपनी ग्रीवा संचालन क्रियाएं, हमारी नेक एक्सरसाइजेस। तो सांस लेते हुए, इनहेल करते हुए अपनी गर्दन को पीछे की ओर लेकर जाएंगे। आपका चिन स्ट्रेच हो जाएगा। एक्सहेल करते हुए, सांस छोड़ते हुए आगे की ओर झुकाएंगे। चिन लॉक लग जाएगा। जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है वे अपनी गर्दन को कृपया आगे ना झुकाएं या सावधानी पूर्वक झुकाएं। फिर से इनहेल करते हुए पीछे की ओर, एक्सहेल करते हुए आगे की ओर। इनहेल एंड कम बैक इन द सेंटर। अपने दोनों हाथों को कमर पर रख लेंगे। पूरी बॉडी रिलैक्स। नेक्स्ट अभ्यास हमारा नेक बेंडिंग है। इनहेल करेंगे सेंटर में, एक्सहेल करते हुए अपनी गर्दन को अपने राइट शोल्डर की ओर झुकाएंगे। ध्यान रखेंगे कि कंधे को नहीं उचकाना है, सिर्फ गर्दन को बेंड करना है, और वो भी बिना किसी झटके के, वेरी स्मूथली एंड जेंटली। Inhale, come to the center. Exhale and bend your neck towards your left shoulder. Again, come back. Inhaling into the center and bend your neck towards your right shoulder. With an exhalation, inhale, center, exhale on your left. वापस आ जाएंगे सेंटर में। अगला अभ्यास नेक ट्विस्टिंग। एक्सहेल करते हुए अपनी गर्दन को धीरे धीरे अपने राइट शोल्डर की ओर लेकर जाएंगे। आपका शोल्डर और आपका चिन एक ही लाइन में करते हुए ऐसा प्रयास करेंगे जो कर सकते हैं, बिना किसी झटके के। वेरी स्मूथली एंड ग्रेजुअली कम बैक with an inhalation in the center. Again, exhale and twist your neck towards your left shoulder. Completely stretch towards your side, but without any jerk on your neck. Come back. Inhale. एक बार और इसको दोहराएंगे। एक्सहेल करते हुए राइट साइड, इनहेल सेंटर एंड एक्सहेल ऑन द लेफ्ट। वेरी स्मूथली एंड जेंटली। हमारी गर्दन को लचीला बनाने में ये एक बहुत ही सहायक अभ्यास है। कम बैक टू द सेंटर। अब इसका अगला अभ्यास है हमारा नेक रोटेशन, ग्रीवा संचालन। सबसे पहले सांस को छोड़ते हुए, एक्सहेल करते हुए अपनी ठुड्डी को अपने सीने से लगाने का प्रयास। इनहेल करते हुए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अपनी गर्दन को घुमाते हुए राइट से लेकर लेफ्ट की ओर आएंगे। एक्सहेल करते हुए आगे की ओर आपकी गर्दन। अब विपरीत दिशा में इसको घुमाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज। इनहेल, rotating your neck from the left to the right.
इनहेल करते हुए पीछे, एक्सहेल करते हुए आगे की ओर आएंगे। एक बार और इसी अभ्यास को दोहराएंगे। फिर से इनहेल करते हुए पीछे फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, एंड नाउ लेफ्ट टू राइट, slowly and smoothly. And now come back into the center and relax. पुनः समस्थिति। अगला अभ्यास हमारा है शोल्डर स्ट्रेच एंड आर्म स्ट्रेच। तो पैरों में उतना ही 2 से 3 इंच का गैप। अपने दोनों आर्म्स को साइड से ऊपर उठाते हुए स्ट्रेच करेंगे, अपने कानों के पास ले आएंगे और पैरेलल कर लेंगे एक दूसरे के, हथेलियां बाहर की ओर, palms facing outside and parallel to each other। पूरे शरीर को सीधा एक ही लाइन में सीधा तान लेंगे ऊपर की ओर। धीरे धीरे एक्सहेल करते हुए वापस आएंगे। कम बैक। हाथों की उंगलियां नीचे की ओर, हाथ तने हुए अपनी जंघाओं से थोड़ी दूरी पर रखेंगे, हाथों को ढीला नहीं छोड़ेंगे। एक और बार इसी अभ्यास को दोहराएंगे। इनहेल करते हुए ऊपर, एक्सहेल करते हुए नीचे, एंड रिलैक्स। अगला अभ्यास हमारा शोल्डर रोटेशन। दोनों हाथों को साइड से उठाएंगे, हथेलियों को आसमान की ओर पलटेंगे, दोनों हाथों को रिस्पेक्टिव शोल्डर्स पर रखेंगे, कोहनियों को आगे से मिलाएंगे, जॉइन योर एल्बोज। इनहेल करते हुए ऊपर, आपकी कोहनियां आसमान की ओर और पीछे की तरफ घुमाएंगे विद अ स्ट्रेच। कम बैक। एक्सहेलेशन के साथ फिर से ज्वाइन करेंगे। वन मोर रोटेशन। इनहेल अप, स्ट्रेचिंग बैक, एक्सहेलेशन डाउन, कम बैक। अब इसको हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, विपरीत दिशा में घुमाएंगे, पीछे की ओर ले जाएंगे, स्ट्रेच करते हुए पीछे से ऊपर की ओर लेकर आएंगे और फिर से आगे से कोहनियां जोड़ लेंगे। अगेन बहुत धीरे धीरे करना है, इसमें आपको गति नहीं बढ़ानी है। अभ्यास को महसूस करें, उसको एंजॉय करें। फील द, आपके शोल्डर्स पे, आपके आर्म्स पर इसका क्या असर हुआ है, उसको महसूस करेंगे। तो कम बैक। अब दोनों हाथों को साइड में स्ट्रेच करते हुए, हथेलियों को नीचे की ओर मोड़ते हुए वापस लेकर आ जाएंगे समस्थिति में। अगला अभ्यास हमारा कटी संचालन फॉर आर ट्विस्टिंग ऑफ आर वेस्ट। वेस्ट लाइन से ट्विस्ट करेंगे, दोनों पैरों में शोल्डर डिस्टेंस जितना गैप, कंधों जितना गैप, पंजे सामने की ओर, और आपके शरीर का वजन दोनों पंजों पर सामान्य रूप से। दोनों हाथों को सामने की ओर स्ट्रेच करेंगे, पैरेलल टू ईच अदर एंड टू द शोल्डर लेवल। अपने कंधों के लेवल जितना अपने हाथों को उठाएंगे, अपनी कमर को ट्विस्ट करते हुए, एक्सहेल करते हुए राइट साइड ट्विस्ट करेंगे। आपका लेफ्ट एल्बो बेंड हो जाएगा और आपके कंधे जितना डिस्टेंस पे आएगा। दूसरा हाथ आपका राइट हैंड पीछे की ओर स्ट्रेच हो जाएगा। गर्दन को पीछे की ओर घुमाते हुए अपने राइट हैंड के अंगूठे को देखने का प्रयास करेंगे। ध्यान रहे कि दोनों कंधे उचके नहीं और दोनों हाथ शोल्डर लेवल पर ही रहेंगे। अपने पंजों को और एड़ियों को ना उठाएं। धीरे धीरे एक्सहेल करते हुए आगे आएंगे सामने की ओर। अब एक्सहेल करते हुए लेफ्ट साइड में ट्विस्ट करेंगे अपनी ट्रंक को। आपका राइट हैंड बेंड हो जाएगा एल्बो से, लेफ्ट हैंड स्ट्रेच हो जाएगा पीछे, और अपनी गर्दन को पीछे घुमाते हुए
अपने हथेली को देखने का प्रयास करेंगे लेफ्ट हैंड की। अगेन इनहेल, कम बैक सेंटर। एक बार पुनः इसी अभ्यास को दोहराएंगे। तो एक्सहेल टुवर्ड्स योर राइट, इनहेल, कम बैक सेंटर, एक्सहेल टुवर्ड्स योर लेफ्ट एंड कम बैक टू द सेंटर। अब धीरे धीरे वापस आ जाएंगे समस्थिति में। दोनों पैरों को 2 से 3 इंच के गैप में लेके आएंगे। फिर से समस्थिति। अगला अभ्यास हमारा घुटना संचालक है, जिनको हम जंघा शक्ति विकासक भी बोलते हैं और चेयर पोज के नाम से भी जाना जाता है। दोनों हथेलियों को ऊपर उठाएंगे, हथेलियां जमीन की ओर, घुटनों को बेंड करते हुए कमर को पीछे से सीधा रखना है और धीरे धीरे नीचे की ओर बेंड करना है। ध्यान रहे कि आगे की ओर नहीं झुकेंगे, कमर को सीधा रखेंगे, अपनी क्षमता अनुसार नीचे बेंड करेंगे। जिनको ज़्यादा घुटने में दर्द है वो ज़्यादा बेंड नहीं करेंगे। और इनहेल करते हुए ऊपर, एक्सहेल करते हुए फिर से नीचे, इनहेल करते हुए ऊपर और वापस आ जाएंगे समस्थिति में। अब हम आसनों के अभ्यास की ओर अग्रसर होते हैं। सबसे पहले आसनों में किया जाने वाला आसन ताड़ासन। दोनों हाथों को सामने लाएंगे, हथेलियों को इंटरलॉक करेंगे, बाहर की ओर मोड़ देंगे और कानों से हाथ सटाते हुए अपने शरीर को पूरी तरह से तानेंगे। ध्यान रहेंगे कि आपका चेस्ट बाहर ना निकले, पेट बाहर ना निकले, बटक्स अंदर की ओर, कमर भी अंदर की ओर, पंजों से लेकर हाथों तक आपका पूरा शरीर एक ही लाइन में। इसी स्थिति में अपने शरीर को अलाइन करते हुए धीरे धीरे अपनी एड़ियों को पीछे से उठाएंगे। सामने एक बिंदु पर फोकस करते हुए अपना बैलेंस मेंटेन करेंगे। ध्यान रहे कि आपका बॉडी का पोस्चर ना हिले, उसको पूरा अलाइन करना है, बॉडी आगे पीछे ना जाए। इसी को थोड़ी देर हम रोक कर रखेंगे। जिनके घुटनों में दर्द है वह इस प्रयास को ना करें, जिनका वजन बहुत ज़्यादा है वह भी इसका अभ्यास ना करें, वे केवल अपने हाथों को ऊपर स्ट्रेच करेंगे। धीरे धीरे एक्सहेल करते हुए हम वापस आ जाएंगे, हाथों को साइड में लाते हुए वापस समस्थिति। अगला अभ्यास हमारा वृक्षासन है। ये एक बैलेंसिंग पोस्चर है जो हमारा कंसंट्रेशन बढ़ाता है और हमारे बॉडी को बैलेंस करने में मानसिक और शारीरिक रूप से काफ़ी हेल्प करता है। तो अपने राइट पंजे को उठाते हुए अपनी लेफ्ट जंघा पर रखेंगे। ऑन योर लेफ्ट थाई प्लेस योर राइट फुट, अगेन concentrating on a point in front of you, maintain the balance। जो ऊपर तक नहीं ले जा सकते वो इस तरह से नीचे भी जहाँ तक आपका बैलेंस मेंटेन हो जाए वहाँ रख सकते हैं। प्रारंभिक अभ्यास के लिए धीरे धीरे जब आपका अभ्यास अच्छा हो जाएगा, दृढ़ हो जाएगा, तो पूरा पोस्चर अच्छे से लगा पाएंगे। दोनों हाथों को साइड में स्ट्रेच करते हुए ऊपर नमस्कार मुद्रा में लेकर जाएंगे और इस आसन को होल्ड करेंगे कुछ देर के लिए। अपना बैलेंस बनाए रखेंगे, दोनों हाथों को नीचे लाएंगे और अपने लेग को वापस लेकर आएंगे। इसी अभ्यास को दूसरी तरफ से दोहराएंगे। राइट फुट, लेफ्ट फुट ऑन योर राइट थाई, घुटना बाहर की ओर, लेग पूरा स्ट्रेच बाहर की ओर। अगेन स्ट्रेच योर हैंड्स, हथेलियां आसमान की ओर और नमस्कार मुद्रा में सामने की ओर देखते हुए एक बिंदु पर अपना ध्यान फोकस करते हुए मेंटेन योर बैलेंस एंड होल्ड द पोस्चर। इसमें भी ध्यान रखेंगे पेट आगे नहीं आएगा,
चेस्ट बाहर नहीं आएगा, पूरा शरीर एक ही लाइन में, राइट या लेफ्ट साइड पर आप बेंड नहीं होंगे। धीरे धीरे वापस आएंगे, हाथों को रिलीज करेंगे और अपने फुट को रिलीज करेंगे, सामने की ओर आ जाएंगे। जिनका बैलेंस नहीं बनता वह दीवार का सहारा लेकर भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। अब हम बैठने वाले आसन करेंगे, तो कोमलता से बैठ जाएंगे दंडासन में। अपने लेग्स को स्ट्रेच कर लेंगे, लेग्स को स्ट्रेच कर लेंगे सामने की ओर। आपका कमर और गर्दन सीधा, हथेलियों को साइड में रखेंगे। ध्यान रखेंगे कि अपने शरीर का वजन आपकी हथेलियों पर ना आए। इस तरह से अपने बॉडी वेट को बैलेंस करना है। ऑन योर टेल बोन, आपका बैक स्ट्रेट, एक 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा आपकी बॉडी का। तो ये दंड आसन अपने आप में ही एक बहुत अच्छा आसन है, आपके पूरे शरीर को दृढ़ता प्रदान करता है। इसी में सेशन में नेक्स्ट अभ्यास हमारा भद्र आसन। दोनों तलवों को आपस में मिलाते हुए अपने शरीर के पास लेकर आएंगे। ब्रिंग इट क्लोज टू योर पेरिनियम, जितना पास ला सकते हैं। अपने हथेलियों को आपस में मिलाते हुए इंटरलॉक योर फिंगर्स और अपने पंजों के नीचे रखेंगे और अपने पैरों को और पास लेकर आएंगे। अपने घुटनों को प्रयास करेंगे कि वह जमीन पर लग जाएं। कमर को सीधा करेंगे। ये है हमारा भद्र आसन। कहते हैं महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छा आसन है, आपके पेल्विक एरिया को स्टिमुलेट करता है और आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग करता है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाता है ऑफ योर हिप जॉइंट्स। तो आंखों को कोमलता से बंद कर लेंगे और इस आसन में बने रहेंगे। लंबा गहरा श्वास प्रश्वास, तत्पश्चात नॉर्मल ब्रीदिंग। धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलेंगे, फिर से अपने दोनों लेग्स को सीधा कर लेंगे। दंडासन में अगला अभ्यास हमारा वज्रासन। अपने राइट साइड पे बेंड करते हुए अपने लेफ्ट पैर को अपने हिप के नीचे लाएंगे, पंजे अंदर और एड़ी बाहर की ओर। फिर अपने लेफ्ट साइड पे बेंड करते हुए अपनी राइट लेग को अपने राइट हिप के नीचे लाएंगे, दोनों पंजे आपस में मिले हुए, एड़ियां बाहर। इस तरह से अपनी बॉडी को सेंटर में अलाइन करेंगे, दोनों घुटने आपस में मिला लेंगे। अपने हाथों को अपने घुटनों पर रखेंगे, पीछे से अपनी कमर को सीधा करेंगे, घुटनों अपने कंधों को रिलैक्स करेंगे, गर्दन को सीधा, कमर को सीधा। ये एक बहुत ही प्रभावशाली आसन है, एकमात्र ऐसा आसन है जिसको आप खाना खाने के बाद कर सकते हैं। आपकी पाचन क्रिया को, आपकी पाचन शक्ति को बढ़ाता है, कोर एरिया की स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, आपका शरीर वज्र के समान स्ट्रॉन्ग बनाता है। आपके जो बॉडी का एनर्जी का फ्लो है, मूलाधार चक्र से सीधा सहस्रार चक्र तक सीधा एनर्जी का फ्लो बिना किसी बाधा के। आपको सीधा बैठने में, इसमें आपकी जो स्पाइन है ये अपने आप ही सीधी हो जाती है। ध्यानात्मक आसन है, वेरी गुड पोस्चर फॉर डूइंग मेडिटेशन प्रैक्टिसेस। इसी आसन में बने रहेंगे, इसके प्रभाव को महसूस करेंगे। वेरिकोस वेन्स के लिए, घुटनों की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए बहुत ही अच्छा आसन माना जाता है। लेकिन जिनको एक्यूट आर्थराइटिस है, बहुत ज़्यादा पेन है घुटने में, वह इस आसन को सावधानी से करें अथवा ना करें।
वज्रासन की श्रृंखला में अगले हमारे 2 अभ्यास हैं, अर्ध ऊष्टासन और ऊष्टासन, हाफ कैमल पोज एंड कैमल पोज। उसके लिए अब हम अपने घुटनों पर खड़े हो जाएंगे। अपने घुटनों में शोल्डर डिस्टेंस जितना गैप, आपके घुटने आपके कंधों के लेवल में। दोनों हाथों को अपने बटक्स पर रखेंगे, कोहनियां और पास लाएंगे, एक दूसरे से पैरेलल लाने का प्रयास। इनहेल करते हुए पहले अपनी गर्दन को पीछे की ओर ले जाएंगे, फिर अपनी चेस्ट को बाहर निकालेंगे और अपनी स्पाइन से बेंड करते हुए अपने नाभि से आगे की ओर आएंगे। आंखें खुली रखेंगे और पीछे की ओर जितना मैक्सिमम और कंफर्टेबली हो सके बेंड करेंगे। इसको होल्ड करेंगे। एक्सहेल करते हुए पहले अपनी स्पाइन को स्ट्रेट करेंगे, फिर चेस्ट को अंदर लेके आएंगे, नेक को स्ट्रेट करेंगे और सामने आएंगे और वापस आएंगे। ये आसन आपकी मेरुदंड को लचीला बनाता है, आपके श्वसन क्रिया को सुचारू रूप से चलाने में मदद करता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, आईसाइट इंप्रूव करता है, थायराइड को इंप्रूव करता है। नेक्स्ट आसन हम करेंगे ऊष्टासन, फुल कैमल पोज। जो नहीं कर सकते वह पुनः इसी अभ्यास को दोहराएंगे। अर्ध ऊष्टासन को जो लोग कर सकते हैं वह करेंगे। अपने पैरों को अगर पीछे पूरा स्लाइड नहीं कर सकते तो अपने पंजों पर कर सकते हैं। धीरे धीरे अपने राइट हैंड को घुमाते हुए अपने राइट हील पर रखेंगे जो, और दूसरे लेफ्ट हैंड को भी इसी तरह अपने लेफ्ट हील पर रखेंगे। गर्दन को पीछे ढीला छोड़ देंगे और अपने नेवल को और ऊपर उठाएंगे, कमर को और अंदर खींचेंगे और ऊपर उठाएंगे। इसी तरह इसको होल्ड करेंगे। आंखों को कोमलता से बंद कर सकते हैं और इस आसन में बने रहें। धीरे धीरे वापस आएंगे, सांस लेते हुए अपना राइट हैंड रिलीज, then release your left hand, come back center। वापस अपनी एड़ी और पंजों पर आपके बटक्स, पैरों में गैप देंगे, अपने घुटनों को और खोलेंगे, पंजे पीछे से मिले रहेंगे। आपका लेफ्ट पंजा पीछे से लेफ्ट अंगूठा आपके राइट अंगूठे पर, एड़ियां बाहर की ओर और आपके हिप्स पैरों में या जमीन पर लगा सकते हैं तो और भी अच्छा प्रयास। इसका काउंटर पोज करेंगे हम, जो रिलैक्सेशन पोस्चर है, चषक आसन, इसको रैबिट पोस्चर भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें आपके शरीर का आकार एक खरगोश के समान हो जाता है। फिर अपने हाथों को सेंटर में रखेंगे, अपने लेग्स के सामने की ओर स्लाइड करते हुए, कमर को सीधा करते हुए। ध्यान रहेगा कि आपके हिप्स, आपके बटक्स, आपकी हील्स के ऊपर ना उठें। जो लोग माथा लगा सकते हैं वे माथा लगाएंगे। जिनका माथा लग जाए वे अपना चिन और चेस्ट को टच करने का प्रयास करेंगे बिना अपने बटक्स को उठाए। ये एक बहुत ही रिलैक्सेशन पोस्चर है, आपके मस्तिष्क को, आपके पूरे शरीर को तनाव मुक्त करने में लाभकारी। जिनको बैक पेन है उनका बैक स्ट्रांग होता है, पेन से रिलैक्सेशन मिलता है। सामान्य श्वास प्रश्वास, धीरे धीरे वापस आएंगे। हाथों को स्लाइड करते हुए वापस इसी स्थिति में बने रहेंगे। अगला अभ्यास हमारा उत्तान मंडूकासन, लेग्स अपार्ट, घुटनों में डिस्टेंस, पीछे से आपके अंगूठे मिले हुए, दोनों हाथों को
ऊपर उठाएंगे, कानों के पास लेकर आएंगे। अब अपने राइट हैंड को लेफ्ट शोल्डर पर रखेंगे और लेफ्ट हैंड को राइट शोल्डर पर रखेंगे। इस तरह से पैरों में गैप। अपने हाथों को ऊपर उठाते हुए राइट हैंड ऑन योर लेफ्ट शोल्डर, लेफ्ट हैंड ऑन योर राइट शोल्डर, एल्बोज पॉइंटिंग अपवर्ड्स। ध्यान रखेंगे चेस्ट बाहर ना आए, पेट बाहर ना आए, कमर पीछे से सीधा। इसी आसन को होल्ड करेंगे। इससे आपके जो अंदरूनी भाग है वो ऊपर की ओर स्ट्रेच होते हैं। तो रेस्पिरेशन के लिए आपका जो चेस्ट एरिया है वो एक्सपैंड होता है, लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाता है, आपके कंधों को फ्लेक्सिबल बनाता है। धीरे धीरे वापस आएंगे, दोनों हाथों को फिर से ऊपर, हैंड बैक ऑन योर नीज, जॉइन योर नीज। वज्रासन में आ जाएंगे फिर से। अब साइड टर्न लेते हुए अपने राइट साइड में झुकाएंगे और दोनों लेग्स को पीछे से निकालेंगे और फिर से दंडासन में आ जाएंगे। इसी श्रृंखला में हमारा सिटिंग पोस्चर में लास्ट पोस्चर वक्र आसन, द स्पाइनल ट्विस्ट। इसके लिए दंड आसन में सीधे बैठ जाएंगे, हथेलियों को साइड में रखेंगे, अपना राइट लेग फोल्ड करेंगे अपने लेफ्ट नी के पास, अपना राइट हैंड पीछे की ओर ले जाएंगे, बहुत ज्यादा दूर नहीं ले जाना, कमर को सीधा रखना है। लेफ्ट लेग आपका सीधा रहेगा, पंजे ऊपर की ओर। अब अपना लेफ्ट हैंड उठाते हुए राइट लेग से अक्रॉस योर राइट लेग, और जो लोग अपना एंकल पकड़ सकते हैं पकड़ेंगे, अदरवाइज मॉडिफिकेशन के साथ अपने घुटने पर अपने कोहनी को रखेंगे, घुटना अंदर की ओर और अपना चेस्ट और अपना पेट बाहर की ओर निकालेंगे और पीछे की ओर अपनी गर्दन को ट्विस्ट करेंगे। ये आपका स्पाइनल ट्विस्ट हो गया, जो आपकी स्पाइन को फ्लेक्सिबल बनाता है। मधुमेह डायबिटीज के पेशेंट्स के लिए बहुत ही अच्छा आसन है, पैनक्रियाज को एक्टिवेट करता है, बढ़े हुए पेट को कम करने का, चर्बी कम करने में सहायक। धीरे धीरे अपनी गर्दन को सीधा करेंगे, हाथों को रिलीज करेंगे, लेग को स्ट्रेच करेंगे सामने की ओर। इसी प्रक्रिया को अपने दूसरे लेग से दोहराएंगे। होल्ड योर लेफ्ट लेग, bring it close to your right knee, left hand on your backside, put it gently and raise your right hand across your left leg. Try to hold your ankle or do it with a modification and stretch yourself back. Pull out your chest and belly and then twist back and hold. पीछे के हाथ पे आपका शरीर का ज्यादा वजन ना आए और आपका स्पाइन स्ट्रेट रहे, पीछे की ओर ना झुके। धीरे धीरे विद एन एक्सहेलेशन कम बैक, रिलीज योर लेफ्ट हैंड, ब्रिंग योर राइट हैंड फॉरवर्ड एंड लेग स्ट्रेट। विश्राम आसन में विश्राम करेंगे, दोनों हाथों को अपने पीछे, अपने लेग्स में गैप, गर्दन को पीछे ढीला छोड़ देंगे और रिलैक्स करेंगे। लंबा गहरा श्वास प्रश्वास। स्टेबलाइज योर ब्रीदिंग। अपने श्वास प्रश्वास को समान गति में लाने का प्रयास। अगले अभ्यास हमारे पेट के बल लेटने वाले आसन हैं, उसके लिए तैयार हो जाएंगे। एक साइड से
अपने पैरों को पीछे की ओर फोल्ड करते हुए पेट के बल लेट जाएंगे। मकर आसन में अपने दोनों हाथों को अपने चिन के नीचे लाएंगे, एक हथेली के ऊपर दूसरी हथेली, पैरों के बीच में 2 से 2.5 फीट का अंतर, एड़ियां अंदर और पंजे बाहर की ओर, और अपने गाल को अपने हाथों पर एक टर्न लेते हुए टिका देंगे। वेरी रिलैक्सेशन पोस्चर आपके मन से सभी प्रकार के तनावों को, आपके शरीर की पूरी थकान को मिटाने में सहायक है। जिन लोगों को हर्निया है या जिनके पेट का ऑपरेशन हो रखा है वह इस अभ्यास को ना करें, पेट के बल ना लेटें। बाकी सब लोग कोमलता से अपनी आंखें बंद करें और इस रिलैक्सेशन को महसूस करें। शाम को जब आप अपने काम से घर आते हैं या वैसे भी किसी भी प्रकार की आपको थकावट हो तो इस आसन में इसके अभ्यास से आपका शरीर कुछ ही देर में सामान्य रूप से एनर्जी आपके अंदर आ जाती है। अगला अभ्यास हमारा सरल भुजंग आसन। दोनों पैरों को पीछे से मिला लेंगे, अपने हाथों को पाम्स को जमीन पर रखेंगे, चिन को जमीन पर रखेंगे, कोहनियां आपकी चेस्ट के पास, धीरे धीरे श्वास भरते हुए इनहेल करते हुए अपनी बॉडी को उठाएंगे, चेस्ट को उठाएंगे, कोहनियां जमीन पर ही लगी रहेंगी, एल्बोज ऑन द फ्लोर, और अपने नेवल एरिया तक अपनी बॉडी को उठाएंगे, धीरे धीरे अपनी गर्दन को पीछे की ओर ले जाएंगे। इस आसन में बने रहेंगे। ये सरल भुजंग आसन है। वेरी इजी posture but very beneficial for your spine, for your respiratory system, for your thyroid and eyesight. धीरे धीरे एक्सहेल करते हुए वापस आएंगे और दोनों हथेलियों को जमीन की ओर रखते हुए अपने थाइस के पास ले आएंगे। अगला आसन के लिए तैयार होंगे। शलभ आसन। शलभ आसन शियाटिका को ठीक करने में बहुत ही अच्छा आसन है। आपकी स्पाइन को फ्लेक्सिबल बनाता है। धीरे धीरे अपनी दोनों पैरों को, टांगों को पीछे से उठाएंगे बिना घुटना मोड़े। इस आसन को करने में थोड़ी सी कठिनाई हो सकती है। जिन लोगों से ना हो वह एक लेग को उठाकर कर सकते हैं। पहले राइट लेग ऊपर करेंगे, फिर उसको नीचे रखेंगे, फिर लेफ्ट लेग को उठाएंगे। जो उठा सकते हैं वे दोनों लेग्स को एक साथ उठाएंगे। पंजे बाहर की ओर स्ट्रेच हुए, नीचे से पूरी बॉडी को स्ट्रेच करते हुए अपनी दोनों लेग्स को ऊपर की ओर उठाएंगे। घुटने सीधे, होल्ड करेंगे इस पोस्चर को। आपका कोर एरिया स्ट्रांग होता है, बेली फैट बर्न होता है, शियाटिका ठीक होता है। धीरे धीरे एक्सहेल करते हुए कोमलता से बिना किसी झटके के अपने लेग्स को नीचे लाएंगे। फिर से मकर आसन में आएंगे और रिलैक्स करेंगे। गैप बिटवीन योर लेग्स, एड़ियां अंदर, पंजे बाहर की ओर, हाथों को एक दूसरे के ऊपर और गर्दन को ट्विस्ट करते हुए अपना चीक आपके हाथों पर। Close your eyes and relax. अपने सांसों की गति को नियंत्रण में लाते हुए और अपना लेफ्ट हैंड साइड में से निकालते हुए टर्न हो जाएंगे। अपने पीठ के बल लेट जाएंगे। पीठ के बल लेटने वाले आसन।
पूरी तरह से अपने शरीर को सीधा कर देंगे, गर्दन सेंटर में। पीठ के बल लेटने वाले आसनों में सबसे पहला आसन हमारा सेतुबंद आसन। दोनों घुटनों को मोड़ेंगे, अपने पैरों की एड़ियों को अपने बटक्स के पास लेकर आएंगे। घुटने सीधे बाहर की ओर नहीं मुड़ेंगे और घुटनों में कंधों जितना गैप, डिस्टेंस ऑफ योर शोल्डर लेंथ बिटवीन योर लेग्स। जो लोग अपने घुटनों के टखनों को पकड़ सकते हैं, एंकल्स को पकड़ सकते हैं, वे एंकल्स को पकड़ लेंगे और पास लेकर आएंगे अपने नितंबों के पास। जो नहीं पकड़ सकते वे हथेलियों को सामान्य रूप से साइड में रखेंगे। अब इनहेल करते हुए अपनी कमर को ऊपर उठाएंगे, नेवल एरिया को ऊपर की ओर ले जाएंगे। अपनी क्षमता के अनुसार इस आसन को करेंगे। ये बैक पेन के लिए और आपकी स्पाइन को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग होता है, बेली फैट बर्न होता है, थायराइड के लिए भी बहुत अच्छा आसन है। इनहेल करते हुए ऊपर उठाएंगे और ऊपर उठाएंगे। कोशिश करेंगे कि आपका चिन लॉक लग जाए। जब आपका चिन लॉक लग जाएगा तो इस आसन में होल्ड करेंगे कुछ देर के लिए। ब्रीदिंग को नॉर्मल रखेंगे। एक्सहेल करते देखेंगे घुटने एक लाइन में रहें, पंजे भी सामने की ओर रहे, घुटने बाहर की ओर ना मुड़े। धीरे धीरे एक्सहेल करते हुए वापस आएंगे, अपनी लेग्स को स्ट्रेच करेंगे, सीधा कर लेंगे। गहरा श्वास प्रश्वास, रिलैक्स करेंगे। जो भी लोग थक गए हों या थकावट का एहसास हो, वो थोड़ा सा पॉज लेके फिर से अभ्यास शुरू कर सकते हैं। किसी भी आसन में अगर आपको थकावट हो रही है या ब्रेथ आपका आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है, तो सबसे पहले अपनी ब्रीदिंग को स्टेबलाइज करें और फिर दूसरे आसन में जाएं। किसी भी प्रकार का कोई भी जोर जबरदस्ती अपने शरीर के साथ नहीं करना है। अब हमारा अगला अभ्यास उत्तान पादासन। दोनों लेग्स को परस्पर मिला लेंगे, पैरों को आपस में मिला लेंगे, हथेलियों को अपनी जंघाओं के साइड में ही रखेंगे। धीरे धीरे श्वास लेते हुए अपनी टांगों को 30 से 45 डिग्री के एंगल पर उठाएंगे, बिना घुटना मोड़े। धीरे धीरे सांस लेते हुए उठाएंगे 30 से 45 डिग्री तक। इसको होल्ड करेंगे। आपके कोर एरिया को स्ट्रॉन्ग करता है, बेली फैट को बर्न करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है, आपके थाइस की मसल्स को टाइटन करता है। धीरे धीरे एक्सहेल करते हुए वापस आएंगे, कोमलता से बिना किसी झटके के अपने पैरों को धीरे धीरे नीचे लाएंगे। अगला अभ्यास हमारा अर्ध हल आसन। इसी तरह से जितना घुटना मोड़े अपनी लेग्स को 90 डिग्री उठाने का प्रयास करेंगे। इस प्रयास के दौरान ध्यान देंगे कि आपके बटक जमीन से ना उठें, जमीन पर ही बने रहें। श्वास लेते हुए खाएंगे, अपनी लेग्स को, पंजों को अंदर की ओर मोड़ लेंगे, घुटनों को सीधा करेंगे, अपने पंजों की ओर देखने का प्रयास करेंगे, गर्दन को सेंटर में रखेंगे, शोल्डर्स को रिलैक्स रखेंगे। वेरिकोस वेन्स के लिए, आपके मस्तिष्क के लिए, आपका जो ब्लड फ्लो है आपके बॉडी की तरफ आता है, लेग्स को रिलैक्स मिलता है, कोर एरिया स्ट्रेंथन। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए कोमलता से बिना किसी झटके से आप अपनी लेग को वापस रखिए। लंबा गहरा श्वास
the श्वास, stabilize your breathing. अगला अभ्यास पवन मुक्त आसन। इसी तरह अपने पैरों को पहले 90 डिग्री तक ऊपर उठाएंगे। उठाने के बाद अपने घुटनों को मोड़ेंगे, अपनी चेस्ट के पास लाएंगे, दोनों हाथों को आपस में मिलाते हुए उंगलियों को फंसाते हुए एक दूसरे में इंटरलॉक योर फिंगर्स। अपने घुटनों को अपने चेस्ट के पास दबाएंगे। जब अच्छे से चेस्ट के पास आपके घुटने आ जाएं, तो जिन लोगों को सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है वह अपनी गर्दन को नहीं उठाएंगे, वह बिना गर्दन उठाए इसका अभ्यास करेंगे। बाकी लोग अपनी गर्दन को उठा के अपनी चिन को दोनों घुटनों के बीच में लाने का प्रयास करेंगे। पवन मुक्त आसन एसिडिटी, गैस, इन सब के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। पवन से मुक्त करता है, आपकी गैस को रिलीज करता है। कॉन्स्टिपेशन के लिए एक बहुत ही अच्छा आसन है। आपकी गैस की समस्याएं, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, कॉन्स्टिपेशन रिलीज होती है, उसमें सहायता मिलती है। धीरे धीरे अपनी गर्दन को वापस ले आए, हाथों को जंघाओं के पास लेकर आए, अपनी लेग्स को फिर से 90 डिग्री ऊपर उठाएं, धीरे धीरे बिना किसी झटके के वापस लेकर आएंगे। शवासन में लेट जाएंगे, पैरों के बीच में गैप 1 से 1.5 फीट का गैप रख लेंगे। हथेलियां आसमान की ओर, पूरा शरीर ढीला छोड़ देंगे, आंखों को कोमलता से बंद कर लेंगे। क्लोज योर आईज, गैप बिटवीन योर लेग्स, palms facing the ceiling, neck relaxed, shoulders relaxed. Surrender yourself. Leave your body loose. Complete relaxation from head to toe, toe to head. शवासन एक बहुत ही महत्वपूर्ण आसन है। अपने अभ्यास के बाद, चाहे आप वर्कआउट करते हो, एरोबिक्स करते हो, जुम्बा करते हो, किसी भी प्रकार का शारीरिक अभ्यास, उसके बाद अपने पूरे शरीर को रिलैक्स करना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए शवासन एक बहुत ही महत्वपूर्ण आसन है। ये न केवल आपके शरीर को शिथिल करता है, बल्कि आपके मस्तिष्क को भी शांत करने में आपकी सहायता करता है, अनिद्रा को दूर करता है, एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, इन सब से शरीर को मुक्त करता है। सहायक आसन, रिलैक्सेशन, अपने सभी शरीर के बाहरी अंगों को और शरीर के सभी अंगों को शिथिल होता हुआ महसूस करें। आपका पूरा शरीर शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। Your body and mind are connected. Feel the connection between your body and mind. अपने शरीर के प्रति सजग रहें, सोए नहीं, सोना नहीं है। शरीर के प्रति, अपने श्वासों के प्रति सजग रहना। लंबे गहरे श्वास, inhale and exhale, stabilizing your
body and mind. Inhale all the positive energy into your body and mind. Exhale all the negative energy out of your body and mind. And completely relax. धीरे धीरे अपनी चेतना में वापस आएंगे। दोनों पैरों को आपस में मिलाएंगे। अपने हाथों को पीछे की ओर ले जाएंगे। उंगलियों को आपस में फंसाएंगे। हथेलियों को बाहर की ओर मोड़ देंगे। पूरे शरीर को अच्छे से तान लेंगे। नीचे से नीचे की ओर और ऊपर से ऊपर की ओर कंप्लीटली स्ट्रेच योर बॉडी। पेट को अंदर की ओर, कमर जमीन पर एंड रिलैक्स। अपने लेफ्ट हैंड का तकिया बनाएंगे और लेफ्ट साइड टर्न हो जाएंगे। जब भी आप सोएं तो लेफ्ट टर्न करके ही सोएं। पेट आपका लेफ्ट साइड में होता है। उसमें जो भी खाना होता है वो अच्छी तरह से हजम हो जाता है। हमारा हाथ भी लेफ्ट साइड पर होता है। ये अच्छे से फाउंडिंग करता है। अगर हम राइट टर्न करते हैं तो हमारे हाथ पर ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। इसलिए कोशिश करें कि लेफ्ट साइड टर्न करके सोएं। बाकी सोते टाइम पीछे की तरफ हम उठ जाते हैं। वो हमारी निद्रा का ही एक वो है, तो वो रहेंगे जो भी आप तरफ टर्न करें। लेकिन जब आप सोएं तो लेफ्ट साइड में टर्न करके सोने का प्रयास करें। अब राइट हैंड से अपने को सपोर्ट करते हुए बैठ जाएंगे। कोई भी आरामदायक आसन में शरीर को स्थिर करने का प्रयास। दोनों हाथों को घुटनों पर रखेंगे ज्ञान मुद्रा में। आपका फर्स्ट इंडेक्स फिंगर और थंब जॉइन रहेगा। लंबा गहरा श्वास, इसके साथ ही कपाल भाती का अभ्यास। एक्टिव एक्सहेलिंग एंड पैसिव इनहेलिंग। एक्सहेल पर ही कंसंट्रेट करेंगे। इनहेल आपका ऑटोमेटिक होगा। लंबा गहरा श्वास, श्वास को पूरी तरह से अपनी नासिका से निकालते हुए और सिर्फ श्वास को छोड़ने की ही प्रैक्टिस करेंगे। इसमें अपने चेहरे को नहीं बनाएंगे, चेहरे को सामान्य रूप से रहने देंगे। अपने नासिका पर ज़्यादा प्रेशर नहीं डालेंगे। आवाज़ निकले या ना निकले, आपको अपनी नासिका पर ज़्यादा प्रेशर नहीं करना है। पेट पर भी ज़्यादा प्रेशर नहीं करेंगे। बहुत ही सामान्य तरह से इसको करेंगे। तो शुरू करते हैं। लंबा गहरा श्वास, last 10 counts. Complete exhalation and deep inhale. Normal breathing. आंखों को बंद ही रहने देंगे। अगला अभ्यास हमारा नाड़ी शोधन प्राणायाम, अनुलोम विलोम भी कहते हैं। दोनों पहली उंगलियों को मोड़कर अपने अंगूठे के जड़ पर लगाएंगे। बाकी की लास्ट 2 फिंगर्स स्ट्रेट रहेंगी। राइट हैंड की लेफ्ट हैंड ज्ञान मुद्रा में बना रहेगा आपके लेफ्ट घुटने पर। अपने राइट अंगूठे से अपने राइट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से इनहेल करेंगे। कमर गर्दन सीधी, लंबा गहरा श्वास,
अब थर्ड फिंगर से अपने लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे, राइट नॉस्ट्रिल से एक्सहेल करेंगे, लंबा गहरा श्वास बाहर की ओर। फिर से राइट नॉस्ट्रिल से इनहेल करेंगे, डीप इनहेल, एक्सहेल फ्रॉम योर लेफ्ट। ये हमारा एक चक्र पूरा हुआ। इसी तरह से 2 चक्र और दोहराएंगे। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से इनहेल करेंगे, राइट नॉस्ट्रिल से एक्सहेल करेंगे, फिर से राइट से इनहेल, लेफ्ट से एक्सहेल, फिर से लेफ्ट से इनहेल, राइट से एक्सहेल, इनहेल फ्रॉम राइट, एक्सहेल फ्रॉम लेफ्ट। अब लेफ्ट से एक्सहेल करते हुए वापस अपने राइट हैंड की ज्ञान मुद्रा बनाते हुए अपने राइट घुटने पर रख देंगे, कोमलता से लंबा गहरा श्वास, प्रश्वास। अगला अभ्यास करेंगे हम शीतली प्राणायाम। हमारे शरीर को शीतल करने में, ठंडक करने में सहायक। जो हाई बीपी के मरीज हैं उनको बहुत ही सहायता, ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करने में बहुत ही इफेक्टिव प्राणायाम है। इसमें अपनी जीभ को बाहर निकालेंगे, अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे एक पाइप की शेप में, इस तरह से, और इनहेल करेंगे अंदर की ओर, जीभ को अंदर ले जाएंगे, गल्प करेंगे, मुंह बंद करेंगे और अपने नाक से एक्सहेल करेंगे। एक बार आप देख लेंगे। तो करते हैं, इनहेल, जीभ को बाहर निकालना है, गल्प करेंगे अंदर, एक्सहेल फ्रॉम योर नॉस्ट्रिल, वन मोर टाइम, अपनी जीभ को बाहर निकालेंगे, रोल करेंगे अंदर की ओर, इनहेल करेंगे, गल्प इनसाइड एंड एक्सहेल फ्रॉम योर नॉस्ट्रिल। अगला अभ्यास भ्रामरी प्राणायाम। कान को बाहर की ओर से अंगूठे से बंद, पहले एक बार देख लेंगे, कानों को बाहर की ओर से अंगूठे से बंद करेंगे और षणमुखी मुद्रा बनाएंगे। फर्स्ट फिंगर जेंटली ऑन योर आईज, सेकेंड फिंगर आपके नॉस्ट्रिल के साइड में, थर्ड फिंगर आपके अपर लिप्स पे, फोर्थ फिंगर आपके चिन पर। कानों को कोमलता से बंद, कान के अंदर हाथ नहीं डालना है, अपने बाजू को साइड में स्ट्रेच कर लेना है। ये षणमुखी मुद्रा। लंबा गहरा श्वास लेना है। श्वास छोड़ते समय अपने दांतों के बीच में गैप रखना है। आपकी जीभ अंदर की ओर टंगी रहेगी और मुंह बंद करना है, होंठ आपस में मिले रहेंगे। सांस छोड़ते हुए भ्रमर गुंजन, इसको अभ्यास को 3 बार करेंगे। पहले एक बार आप देख लेंगे। इस तरह से इसका अभ्यास करना है। 3 बार करेंगे और फिर वापस आ जाएंगे। लंबा गहरा श्वास, वापस आ जाएंगे। हथेलियां घुटनों पर, इसी स्थिति में बने रहेंगे। आंखों को बंद ही रखेंगे।
इस अभ्यास के द्वारा आपके शरीर में आए हुए परिवर्तन को महसूस करेंगे। लंबा गहरा श्वास प्रश्वास। ध्यान की मुद्रा में आएंगे। अपना लेफ्ट हैंड अपने पैरों के बीच में, सेंटर ऑफ योर बॉडी। आपका राइट हैंड ऑन योर लेफ्ट हैंड। अंजलि मुद्रा, ध्यान मुद्रा, दोनों अंगूठे आपस में मिले हुए। ध्यान लगाएंगे। अपने मन को शांत करने का प्रयास। आईब्रोज के सेंटर में अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। नॉर्मल इनहेल एक्सहेल। पूरी तरह से अपने शरीर को शिथिल करेंगे। कॉन्सेंट्रेट। मौन रहेंगे। मन में चल रहे विचारों की बातचीत को भी मौन करने का प्रयास, लेकिन उनसे लड़ना नहीं है। अपने अंतर्द्वंद को शांत करने का प्रयास। चित्त की शांति, मन की शांति। अपने क्रोध को नियंत्रण में लाने का प्रयास। चेहरे पर मुस्कुराहट का भाव। अपने इष्ट के साथ आपका संपर्क का ध्यान। इस स्थिति में बने रहें। Completely try to travel inside your body. अपने आप को पहचानने का प्रयास। अपनी ओर ध्यान करने का प्रयास। मैं कौन हूँ? मैं इस संसार में क्यों आया? मैं इस संसार में क्या कर रहा हूँ? मेरे क्या टारगेट्स हैं? मुझे क्या करना है? और मैं क्या कर रहा हूँ? क्यों कर रहा हूँ? इस पर अपने अंदर विचार करें। अपनी क्षमता को, अपने पॉजिटिव एस्पेक्ट को पहचानने का प्रयास। मैं क्या कर रहा हूँ? मैं अपने पूरे टैलेंट को, उसका उपयोग कर रहा हूँ या नहीं? और मैं क्या करना चाहता हूँ जिससे मेरा मन प्रसन्न हो, आत्मिक प्रसन्नता। और मैं समाज की किस तरह से सेवा या अपनी सेवाएं प्रदान कर सकता हूँ। दूसरों के प्रति अपना दृष्टिकोण, एक सरलता का भाव। दूसरों के प्रति करुणा का भाव। पूरे संसार को देखने का दृष्टिकोण बदलने का भाव। मन में शांति। दोनों हाथों को आपस में जोड़ेंगे। प्रार्थना के लिए, शांति पाठ के लिए तैयार होंगे। लंबा गहरा श्वास। ओम। सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे सन्तु निरामया। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित्
दुख भाग भवे मा कश्चित् दुख भाग भवे ओम शांति शांति शांति। मन में संकल्प, प्रतिदिन योगा अभ्यास करेंगे। अपने प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने देश के प्रति कर्तव्यबद्ध अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन करेंगे और खुद भी स्वस्थ रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे और अपने चारों ओर प्रसन्नता और सबको योगाभ्यास करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। स्वस्थ रहने की ओर हमारा एक कदम, हमारा प्रयास जो हमारे को पूरे विश्व में अपने आसपास इसको और अग्रसर करना है। कोमलता से अपनी हथेलियों को घर्षण करेंगे। रब योर palms and generate the heat. Fingers apart, only palms को आपस में घर्षण करेंगे। हथेलियां गर्म हो जाएंगी तो पॉजिटिव ऊर्जा को अपने पूरे बॉडी में समा लेंगे। एब्जॉर्ब दिस पॉजिटिव एनर्जी ऑल ओवर योर बॉडी, योर फेस, योर नेक, shoulders, arms, over your legs, thighs, back, forward, over your chest, over your head. Again, come back into Namaskar Mudra. Open your eyes with a smile on your face. Thank you. आज का हमारा सेशन यही समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको पसंद आया होगा। फिर से एक बार आप सभी का धन्यवाद। Thank you to the management of the school and to the parents, teachers, students, all the participants. Thank you so much. Have a good day and enjoy. Namaskar. Thank you, ma'am, for your words and encouragement. We will surely practice yoga and remain fit and fine. Now, I humbly request Mrs. Renu Mahajan, the sports in charge of our school, to propose the vote of thanks. प्रवीण ये माइक ऑन कर देना, आवाज करके। A very pleasant morning to all. It is my privilege to propose a vote of thanks on this special day to our manager, Reverend Father James Peter Raj, and our principal, Reverend Sister Joyce, for their initiative, support, and guidance to make this event possible and very fruitful. I extend my gratitude to our guest, Mrs. Gurvinder Kaur, to take out time from her busy schedule for each one of us. This session, no doubt, refreshed our minds. It was indeed a very meaningful, inspiring, and significant event. A great help for each one of us to keep ourselves active and physically strong, especially during this unpredictable time of pandemic. Special thanks to our headmistress, Sister Alice, our committed teachers, parents, and students of Sahadev for their valuable presence. Last but not the least, my heartfelt thanks to my colleagues and all those who have helped us to make this program a great success. Wishing you all a great, very happy International Yoga Day. Stay safe. Let us help and motivate others to make yoga a part of our daily routine. Thank you. I, Dolly Kiston of class 12th A, would like to take this opportunity to thank our physical education teachers for believing in my ability and giving me this rare opportunity to anchor this assembly on this very special day, International Day of Yoga. Thanks to all my student companions who have joined this meet, making this event a joyful one. I wish all the best to all who believe in yoga
May it make you fit as a fiddle. Thank you and have a great day ahead. Children, you may leave the meeting. Thank you. Thank you.